یہ پاک علیہ کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت انداز کہ پیارے آقا علیہ السلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. آپ علیہ السلام طویل خاموشی فرماتے, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, جس میں نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی. اب یہ بھی بڑی کمال ہے. ایک تو بہت بولنے کی عادت یہ انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کب ہوگا. ایسا کر کے ہم اپنا وقار خود ختم کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھ کے لوگ گھڑی دیکھیں, اچھا حضرت میں چلتا ہوں, نہیں رکو اور بتانا ہے وہ نہیں سننا چاہتا, اور بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, اللہ کرے آپ مجھے چاہیں تو یاد کر لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار. فرق ہے نا, لوگ کہیں حضور کچھ اور کہیں نا, اس کا مزہ اور ہے, اور لوگ کہیں حضرت میں چلتا ہوں, آپ نے نہیں اور بیٹھو. اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے جناب. پہلے دیکھیں ایک گھنٹے ہم بیانات کرتے ہیں, اب 1 گھنٹے کا بیان ہم نے چھوڑ دیا. بھائی ہم نے کہا 30 منٹ بہت ہیں, بھائی سے 30 منٹ لے لو, یہ بڑا بات ہے. اب تو دنیا چلی گئی. پہلے 5-7 منٹ کا کلپ دیکھتے تھے, اب تو 30 سیکنڈ کا ان کو اسٹیٹس دیکھنا ہے. اب تو یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ سنا 5-10 سیکنڈ کی ایڈ آنا لگ گئی. سائیکی سمجھ گئے نا لوگ کہ بھائی یہ 5-10 سیکنڈ ہی سنیں گے, 30 سیکنڈ سنے گی کون. ہم کہہ رہے ہیں نہیں میری پوری سنو, اور ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ گفتگو کرنے والے کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. ہاں آپ کے ساتھ بھی ہوگا, یار اس کا فون اٹھایا نا اس نے آدھے گھنٹے پہلے سے نہیں رکھنا. اب بات بیچارے کو بڑی ضروری کرنی ہے, لیکن اس لیے آپ نہیں اٹھا رہے کہ اس بندے نے اپنا امیج یہ ڈالا ہے کہ یہ سلام دعا بھی آدھے گھنٹے کی کرتا ہے. نہ کریں ایسا. آپ شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا سیکھ جائیں. بڑا خوبصورت عربی کا مقولہ ہے, ما خیر الکلام, شاید حدیث پاک ہے, خیر الکلام ما قل ودل. سمجھ سے بات, سبحان اللہ. کیا آپ دیکھیں نبی یہ بات کی باتیں دیکھیں. اچھا یہ خود لفظ کتنا مختصر ہے, یعنی یہ بہت پیاری بات بھی فرماتی ہے اور 2 لفظوں میں فرماتی ہے. یہ سمجھیے, سیکھیے بات. آج کے دور میں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر الکلامی, بہترین کلام کیا ہے؟ ما قل ودل, مختصر اور پردلیل, شارٹ اینڈ سویٹ, ٹو دا پوائنٹ. بات کرو ٹو دی پوائنٹ, نہ لمبی. تو یہ ہم لمبی بات کر کے اپنا امیج خود گراتے ہیں, اور پھر ہمیں بعض اوقات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو الحمدللہ یہ والا جو بیان آپ کے درمیان کر رہا ہوں, میں مبلغین کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ بھائی بیان کیسے کرنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. اپنی بات کو اتنی پردلیل اور شارٹ اینڈ سویٹ رکھو کہ اگلا کہے حضور 5 منٹ اور کچھ باتیں بتائیں, یہ آپ کی عزت ہے. اور اگلا کہے میں جا رہا ہوں حضرت آپ نے نہیں سنو, میرا بیان تھوڑی پورا ہوا ہے, اتنا بڑا لے کر آیا. نہیں, یہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہو کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں. نبی پاک سبحان. اب جب پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت انداز ہم نے حدیث میں سنا, آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو آئے آرام آرام سے. حدیثوں میں آتا ہے سننے والا جو ہے نا, آپ علیہ السلام کے الفاظ گننا چاہتا نا تو الفاظ گن لیتا, کاؤنٹ کر سکتے تھے آپ الفاظ کو. کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں, شالیمار ایکسپریس بھی شاید سلو چلتی ہے, اس بندے کو دوبارہ کہنا مطلب تھوڑا سا دوبارہ کہیں کیا سمجھ نہیں آئے, اوپر سے نکل گئے. اتنی تیز بولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ بڑا اونچا. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی ٹریول میں تھے, تو برابر سے مجھے لگا جھگڑا ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دوست ساتھ ٹریول کر رہے تھے, میں گیا, میں نے خیر تو ہے, پھر نہیں ہم تو باتیں کر رہے ہیں. ایسے باتیں کر رہے, مجھے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے. ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. او بھائی یہ مسلمانوں والا اسٹائل نہیں, کہ سنت پر عمل کرنا ہے نا تو ٹھہر کر پیار سے میٹھا بول. آج کل دیکھیں جتنی اچھے انداز سے آپ بات کریں گے اتنا لوگ آپ کو سنیں گے, آپ سمجھا سکیں گے, کاروبار میں بھی کام آئے گی, اور سنت کی نیت سے کریں. اللہ آپ کو مبلغ بنا دے, آپ کو داعی بنائے. اگر کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کے ایک اور بڑی خوبصورت ادا کہ سرکار دو علیہ السلام جب کسی کی طرف توجہ فرماتے نا تو پورے متوجہ ہوتے, مبارک نظریں نیچی رہتی, نظر شریف آسمان کی بجائے زیادہ تر زمین کی طرف رہتی, اور اکثر نبی پاک آنکھ کے مبارک کناروں سے دیکھا کرتے تھے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت کے لاکھوں سے, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آوارہ نظری نہیں, باوقار. کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور یہ معجزہ بھی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا. ابھی تو میرا مائک لگا ہوا ہے نا, تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی, اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. جتنے لوگ ہوتے تھے خطبہ سننے کے لیے ان سب کو یکساں آواز جاتی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے عرفات کے میدان میں. نبی پاک نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں صحابی بیٹھے تھے ان تک بھی پراپر آواز جا رہی تھی. یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ. اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے نا, تو رب کا پیغام پہنچانا تھا اور واضح و نصیحت کے ذریعے پہنچانا تھا. تو آپ ایک کمال دیکھیں کہ تمام صحابہ میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے, سماعت سے محروم کوئی صحابی نہیں ملے گا.
ताकि नबी पाक की हर बात उनके कानों तक पहुंचे। नाबीना सहाबा हैं, मगर कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जो सुन ना सकते हो, क्योंकि प्यारे आका रब का पैगाम लेकर आए थे, तो ये पैगाम प्रॉपर ट्रांसमिट हो जाए, ये पैगाम प्रॉपर उन तक पहुंच जाए। इसलिए रब ने नबी पाक के उन सहाबा पर भी ये मेहरबानी फरमाई कि कोई भी सहाबी ऐसा नहीं था जो समाअत से महरूम था। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये तो एक अंदाज़े गुफ्तगू हो गया जो हम सब ने सीखना है। अब जब मैं बात कर रहा था कि नबी पाक के जो अल्फाज होते थे ना, वो इतने कमाल के थे, गुफ्तगू इतनी फसाहत और बलागत वाली थी। ये आपको याद रखना होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किस दौर में आए। नबी पाक जिस दौर में आए ना, उस दौर में अरब के लोगों का एक अलग कमाल ये था कि दे वर सो मच इंटेलेक्चुअल। वो बहुत कमाल की गुफ्तगू करने वाले थे, उनको अपनी गुफ्तगू पर नाज भी बड़ा था। यानी वो जमाना था, आप शायद हैरान होंगे कि तलवारों के साथ साथ अल्फाज से भी मुकाबला होता था। एक दूसरे पर हमले अशआर के जरिए भी होते थे, यानी दुश्मन कुछ शेर लिखकर भेजते थे, ये इसका जवाब अशआर में देते थे। यानी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा होते थे ना, तो माद अल्लाह दुश्मन नबी पाक की गुस्ताखी में अशआर लिखते थे, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित, अल्लाह अकबर, नबी पाक की नाते लिख लिख कर उसका जवाब दिया करते थे। बल्कि सुभान अल्लाह, नबी पाक का एक फरमान जिसका मजमून हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में कि अब्दुल्ला, तुम्हारे अशआर दुश्मनों के लिए तीरों की माने हैं। तो ये ऐसा दौर था। अच्छा, अरब की लोगों को वैसे ही अपनी गुफ्तगू बड़ा नाज है और उनको हक भी है। जितनी फसाहत अरबी जबान में है ना, दुनिया की किसी जबान में नहीं है। ठीक है, अब आपको एक और बात बताऊं कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि दौर कैसा था और माइंडसेट क्या था। कि अरब के जो अरबी होते हैं, अरब बोलने में रहने वाले वो कौन होते हैं? अरबी होते हैं। जो अरबी नहीं होते वो कौन होते हैं? हम सब क्या है? अजमी। आपको पता है अजमी के माना क्या? अजमी कहते हैं गूंगे को। आपने बड़े सुकून से कह दिया कि हम अजमी हैं। एक्चुअली अरब के लोगों का कहना यह था, बोलना हमें ही आता है, हमें ही गुफ्तगू आती है, बाकी दुनिया तो गूंगी है। That's why we are all अजमी। हम अरबी नहीं है ना, तो हम अजमी। अजमी का माना ही गूंगा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि माइंड सेट क्या था गुफ्तगू का। अच्छा, ऐसे मौके पर नबी पाक तशरीफ लाए और उनसे बात करनी है, उनको अल्लाह का पैगाम देना है, तो कितना सुपीरियर क्वालिटी की गुफ्तगू दरकार थी। अच्छा, फिर सोने पर सुहागा ये कि नबी पाक किसी मदरसे में नहीं है, नबी पाक का कोई उस्ताद नहीं है, प्यारे आका ने बाकायदा कोई किताब पढ़ी नहीं है, और बात करनी है उन लोगों से जो अपने जमाने के प्रोफेसर समझ लें, अपने जमाने के वन ऑफ द बेस्ट समझ लें, उनके सामने जाकर बात करनी है। मगर रब ने सुभान अल्लाह अपने हबीब को कैसा इल्म अता फरमाया कि जब नबी पाक गुफ्तगू करते ना, तो पता उनका हाल क्या होता था? आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं। वो कहते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े हुजूर इंटेलेक्चुअल बैठे होते थे सामने, बट दे वर शॉक्ड। वो हैरान हो जाते थे कि ये कौन से अल्फाज हैं? तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। अरे बड़े बड़े आए गुफ्तगू करने वाले, मगर जब मेरे आका बयान फरमाते फिर क्या होता? वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह अकबर। नबी पाक कुरान की आयत तिलावत करते, वो मान जाते कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये रब का कलाम है। और नबी पाक की हदीसों में एक हदीस तो मैंने मुख्तसर सुनाई ना, कहते हैं ना कूजे में, दरिया को कूजे में बंद कर देना, एक एक लफ्ज। आज भी नबी पाक के एक जुमले पर पूरी पूरी किताबें लिखी जा रही हैं। प्यारे आका की एक हदीस पर जनाब बड़ी शरह लिखी जा रही है। तो आज मैं नबी पाक की एक हदीस भी बयान करूंगा। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम ये नियत कर लें कि हम भी ठहर ठहर कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर, तेज आवाज में नहीं, चिल्ला चिल्ला कर नहीं, और बुरी गुफ्तगू ना करें, अच्छी गुफ्तगू करें। गुफ्तगू करते वक्त ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि जो मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये लिखा जा रहा है। तुम दरवाजा बंद करके कभी कभी अब्बू नजर आ जाए तो साइड पे हो जाते हो, मगर फोन पे जो बातें कर रहे हो वो इसलिए अब्बू को नहीं सुनाना चाहते कि वो बातें अच्छी नहीं हैं। जो दोस्तों में बैठकर हम गुफ्तगू करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे वालिदैन सुने। तुम्हें ये तो फिक्र है कि वालिदैन ना सुने, मगर जो किरामन कातिबीन फरिश्ते हमारे साथ हैं वो एक एक लफ्ज लिख रहे हैं। वो बंदा सोचे कि मेरी गालियां क्या मैं फरिश्तों को लिखवाऊंगा, मेरी गंदी बातें क्या मैं फरिश्तों को लिखवाऊंगा। और अगर ये नामा अमाल क़यामत के दिन मुझे पढ़कर सुनाना पड़ गया, जहां सिर्फ वालिदैन नहीं, वहां तो मेरे आका भी होंगे, गौसे आजम भी होंगे, सहाबा भी होंगे, सारे औलिया होंगे, मैं कैसे वो बातें पढ़कर सुना सकूंगा? तो वो बोलो जिसको क़यामत के दिन पढ़ सको, वो मत बोलो जिसको पढ़ने में शर्मिंदगी हो। तो काश मैं अपनी गुफ्तगू के बारे में मोहतात हो जाऊं। तो याद रखिए, ये जो ज़बान है ना, ये जन्नत में ले जाने वाला आला भी है, और यही ज़बान जहन्नम के गहरे गहर गड़े में गिरा देने वाली भी चीज़ है। हाँ, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे, मगर इसी ज़बान से आपने 3 जन्नत में दरख्त लगवा ली। है ना मज़ेदार चीज़? बोलते जाए जन्नत में दरख्त, नेकियों का मीटर चालू शुरू। और यही ज़बान से कोई गीबत करे,
यही जबान से दिल तोड़े, यही जबान से गालियां निकाले, यही जबान से फहश कोई, यही जबान जहन्नम में, और बाद अल्लाह यही जबान से कुफरिया कलमात कह दे तो ईमान से खारिज हो सकता। ये बड़ी कमाल की चीज भी है और बड़ी खतरनाक चीज भी है। इसके बारे में बड़ा कॉन्शियस हो। हदीस पाक का मजमून है ना, इसका मजमून है कि हदीस पाक बड़ी कमाल की है। दुनिया में कोई किसी को जन्नत की गारंटी नहीं दे सकता, मगर नबी पाक ने क्या फरमाया, तुम मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। और वो 2 चीजें कौन सी हैं? दाढ़ों के दरमियान वाली और रानों के दरमियान वाली, यानी जबान और शर्मगाह। इन 2 को सही इस्तेमाल कर लो, हराम से बच जाओ, नबी पाक फरमाते मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। इट मींस इट्स नॉट इजी। आसान होता तो इतनी बड़ी गारंटी थोड़ी मिलती। जबान को देखे ना, जबान को कंट्रोल करने के लिए 32 सिपाही हैं, 32 दांत हैं, फिर भी ये 32 सिपाहियों का पहरा तोड़ती है और किसी का जाके दिल तोड़ देती है, किसी पे अटैक कर देती है। नहीं आती काबू में ना। कई बार जिंदगी में हुआ होगा कि आप बोलकर पछताए होगे कि यार नहीं बोलना चाहिए, पार्टनरशिप टूट गई, रिश्ता टूट गया, उसका दिल टूट गया, झगड़ा हो गया, मामला बढ़ गया। पहले सोच लेते हैं, खामोश रहकर नहीं पछताता इंसान, बोल के जरूर पछताता है। किबला शेख तरीका अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल पर बड़ा प्यारा नाम लगाते हैं, पहले तोलो बाद में बोलो। सोच लो ना, जब मैं कहने जा रहा हूं ये दिल तोड़ देगा, कहीं अल्लाह की नाराजगी का सबब तो नहीं बन जाएगा, गुनाह का मीटर तो नहीं शुरू हो जाएगा। सो एक सेकंड रुके तो सही, क्या बोलने जा। अल्लाह करे कि अच्छा बोलना नसीब हो जाए। अब आओ मैं बताता हूँ मेरे आका कैसी गुफ्तगू फरमा। एक हदीस, मुझे अंदाजा है कि मैं अपने बयान भी कह चुका हूँ कि मैं लंबा बयान नहीं करता, तो मैं इंशाल्लाह इन शॉर्ट ही रहूंगा। एक हदीस, और उस हदीस से इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बयान लाइव भी जा रहा है, तो आई होप इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को हमारे इस बयान से भी सीखने को मिलेगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो है उनका एक बहुत प्यारी हदीस है। आपने उसमें मोमिन की तारीफ बयान की है। आप फरमाते अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। बात हुई, मैंने क्या कहा, शॉर्ट एंड स्वीट। मोमिन की तारीफ है। अच्छा माशाल्लाह उस्ताद साहब बैठे हैं, उस्ताद साहब के सामने हम क्या इल्मी बातें करें, इनके कदमों से सीखा हमने। अब इन तीनों लफ्जों को जरा समझिएगा। मोती जैसे लफ्ज कैसे, मैं तर्जुमा बाद में बता दूं दोबारा इसको, इसकी खूबसूरती को और इसको टेस्ट लो, जरा मजा लो। नबी पाक की बातें हैं, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनसे जियाएं लेता है और तारे सलाम कहता। अल मुमिनु, कौन है मोमिन? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन। बल्कि याद भी कर लिया है, कुछ हदीसें याद भी होनी चाहिए अरबी मतन के साथ। तीनों लफ्ज 3-3 हर्फ के, हम वजन हैं। आप समझ रहे, ऐसा लग रहा है मोती हैं जुड़े हुए। अब इसके माना समझिए, मोमिन कौन होता है? हय्यिनुन लय्यिनुन सहलुन, नरम दिल, नरम खू और आसान। दैट्स इट, ये मोमिन की तारीफ है ना। अब हम चेक करते हैं कि हम ये हैं कि नहीं। नरम दिल कौन होता है? किसी को तकलीफ में देखे उसको भी तकलीफ, किसी मुसलमान को प्रॉब्लम हो उसका दिल भी दुखे कि हम ऐसे हैं, तो कहते हैं अगले का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा काम सीधा होना चाहिए। पड़ोसी परेशान है हमसे, मोहल्ले वाले परेशान, किधर गाड़ी पार्क करनी है, किधर जनाब कचरा फेंकना है, किधर किसी को टेंशन देनी है, कोई टेंशन नहीं, हमारे मामला सीधे होने चाहिए। किसी की तकलीफ में आपको तकलीफ होती है कि नहीं, ये मोमिन की निशानी है। मुसलमान तो ऐसा है कि अगर अफ्रीका में कोई मुसलमान परेशान है उसको यहां तकलीफ होनी चाहिए। इसे बात में मजबूत है कि मुसलमान तो एक इमारत की माने है, एक हिस्से को तकलीफ हो दूसरे को प्रॉब्लम होती है। हमें मोमिन इसलिए कहा गया कि हम सब एक दूसरे के खैर ख्वाह, किसी को नुकसान पहुंचाकर मुझे भला नहीं चाहिए, सबका भला, सबकी खैर और सबके भले में अपनी खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।